वेलकम बैक टू द चैनल आयुर्वेदा 360। आयुर्वेदा 360 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं द मोस्ट डिबेटेड टॉपिक इन टुडेस टाइम, NCISM गैजेट। जब NCISM ने 2022 फरवरी में एक गैजेट निकाला था, तभी बहुत सारे लोग जो है उसके ऊपर टिप्पणी करना शुरू किए थे। देयर वाज अ चेंज इन द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ BMS, last year's gazette. And now, when we are about to end this 2023, the NCASM has again given a new notification, that is the gazette through the government of India. So, since it is through government of India, it is not a draft anymore. ये कोई ड्राफ्ट नहीं है, ये तो पहले ही तैयार था, लेकिन अभी इसको लागू भी कर दिया। सो जिस दिन से ये अनाउंस्ड है, उसी दिन से या उसी क्षण से ये लागू है। सो इट वाज रिलीज्ड ऑन 20th of December, that is 2023. So from that day itself it is applicable, which means it is going to be applicable for all the batches of BMS, MD, teachers and whoever it is supposed to be happening to or subjected to. So हम देखेंगे कि आज उस गैजेट में क्या है। सो इट इज़ अबाउट द NCSM गैजेट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड अल्टीमेटली रिलीज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यही है। सो दिस इज द गैजेट। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू बाय नाउ हैव ऑलरेडी सीन दिस, and it is comparatively less page. NCSM has given a very large document last time, but this time it is a very short one with very precise information. So it is initially written in Hindi and later it is mentioned in English. So बहुत लोग जो है इसको नहीं पढ़े होंगे, they are listening to their friends or their seniors. Some people are listening through other channels, but ultimately there is some confusion. I think for clearing all those confusions, I am मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो ये जो गैजेट है इसमें क्या क्या मेजर पॉइंट्स है। इफ यू एनालाइज द गैजेट, देयर आर मेजर पॉइंट्स इन रिलेशन टू द आयुष स्टूडेंट्स, द वेरिफिकेशन, द डबल वेरिफिकेशन मेथड. After that, there is an important information regarding the clinical going students, those who want to start their clinic or any kind of clinical activity, registration. What to do before registration? There is a test, national eligibility test in relation to the practice. Next, the fixed time for both BMS entry, that is NEET, as well as AAPGET, that is all India, that is the postgraduate entrance test, that is in relation to AAPGET. So when it is going to happen, all those things are decided already. Teachers, they also have certain role in this particular gazette. जो promotion की बात है उसमें खासकर ये अप्लाई होगा. And then there is a concept of pre-Ayurveda, where a student will join the course of Ayurveda just after 10th. Plus 1 plus 2 is now, in this case, who wants to join Ayurveda will have some change. So we are going to see all these things. So these are the major changes. So in that first one is about the student identification ID. इसको क्यों किया? बिकॉज द स्टूडेंट जो है ऑलरेडी नीट या AIA-PGET के टाइम वेरिफिकेशन के बाद ही आता है. अ स्टूडेंट एंटर्स अ कॉलेज आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट. लेकिन NCISM ने एक डबल वेरिफिकेशन मेथड यहाँ पर लागू की है ताकि कॉलेज वाले बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो सके. मीन्स स्टिल इट इज़ seen that many of the colleges are having the malpractice. Maybe for that purpose, this rule is made. What is the basic idea behind that? After a student takes a seat in a particular college through the NEET or AIA-PGET, उसमें क्या होगा? The college has to send the list of students. How to send? There is a particular format. So this is that format. About a particular student, this data has to be filled. ऐसे हर एक स्टूडेंट उस बैच में जो भी है सबका भरना है एंड अल्टीमेटली दे हैव टू सेंड. दिस इज फॉर द UG एंड दिस इज फॉर द PG. तो ये है जो NCSM ने दे रखा है. सो दिस विल बी सेंट फ्रॉम द कॉलेज. सो हियर द स्टूडेंट डजंट हैव टू डू एनीथिंग. इसमें कुछ नहीं करना है. कॉलेज हैज टू डू दिस वर्क. वन टू डू आफ्टर द स्टूडेंट्स गेट एडमिटेड and then there will be a particular time period NCSM will give the college. Before that time, the college has to send the list of the students. And what NCSM does, NCSM will collect the document from the counseling
that is the organization which is conducting the counseling. It may be NEET or AIAPGET. Now what happens? The NCSM has two data. One is in relation to the counseling, other one is in relation to the college. The college number of seats which how many are sanctioned will be checked, and each student's data will be cross verified, and then if there is no problem, then no issues. The student will be given an unique ID. स्टूडेंट को एक यूनिक आईडी मिलेगा. कब मिलेगा? अगर काउंसलिंग के द्वारा जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है एंड कॉलेज के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है एंड कॉलेज में कोई इशू नहीं है सीट वेरिफिकेशन में देने में, तब जाके स्टूडेंट को आईडी नंबर मिलेगा. If there is a mismatch, if there is some document missing in the college whereas it is there in the counseling, and if there is any mismatch between the actual date of birth, anything like that, it can be anything, वहाँ पर जो है there will be a question mark and that will be taken up legally. That will be sent to legal team. That will be sent to legal team, and then what to do, that decision will be taken later after the due listening, due hearing of the matter. Maybe if the student is found faulty, then what to do. अगर स्टूडेंट का फॉल्ट नहीं है, किसका है, तो वो सारे चीज़ बाद में देखा जाएगा. अल्टीमेटली नाउ द कॉलेजेस नंबर ऑफ सीट्स जो है जितना मिला है उतना ही भरना पड़ेगा, एंड एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स जो है उनका डॉक्यूमेंटेशन सेम होना चाहिए. यहाँ पर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट का जो दो अलग अलग जगह अलग अलग डॉक्यूमेंट देने की जो बात हो सकती है वो सब बंद हो जाएगा. सो दिस इज द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. सो दिस इज़ वन स्टेप टेकन बाय NCSM, एंड ऑफ कोर्स इसमें बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज एवरीबडी इज़ कमिंग इन ए लीगल वे. इफ़ यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम लीगल वे देन इट मे बी एन इशू. आपके लिए दिक्कत हो सकता है, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. कोई स्टूडेंट को डरने की बात ही नहीं है, एंड कॉलेजेस को कोई कुछ खास चेंजेस होगा नहीं इसमें, बिकॉज NCSM इज जस्ट आस्किंग फॉर द डेटा कैन बी ईजिली गिवन. नाउ विद दिस एक्स्ट्रा वर्क आई थिंक NCSM का जो भी इंस्पेक्शन वगैरह है मुझे लगता है वो सब बेकार है. NCSM is spending so much of amount of money to go for the inspection of each college. If this has to be done extra, then why to go for the inspection? तो मुझे कहीं ना कहीं ये एक्स्ट्रा ही लगा. फालतू पैसे ऑलरेडी बर्बाद हो रहा है बहुत सारे वेरिफिकेशन के चक्कर में, और कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे पैसे वैसे जा रहे हैं, और ये एक तरह से आपका जो इंस्पेक्शन वाला पार्ट था उसको थोड़ा ढीला कर दिया. सो आई थिंक द NCSM शुड टेक मोर efforts towards the inspection to remove the on-paper teachers and others. But NCSM is giving more importance to this. That is also okay. But NCSM, until and unless they go for proper verification during the inspection, आयुर्वेद का जो या आयुष related जो भी situation है, especially in relation to institutes, it will be similar. I don't think there will be much difference. मतलब documentation तो कोई भी कर सकता है, तो इसमें कुछ खास फर्क किसी को नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से. So student ID will be something like this. Which year student? 21. आयु of course आयुर्वेद के लिए, बाकी के लिए बाकी होगा. 0459 will be unique. I think it is abbreviation of state. So the before that there is some identity document, institute identity document, some number will be there. Then if it is a Uttarakhand, there will be some UK like. Then there will be number of students. The last 4 digits, 5 digits, वो student का number है. So this is in relation to the entire code. इससे पता चल जाएगा कि ये स्टूडेंट है. दिस एंटायर थिंग, ही इज दिस स्टूडेंट, इज स्टडिंग इन दिस प्लेस, दिस ईयर ही हैज जॉइंड अंडर दिस ब्रांच. एक ही नंबर से, एक ही डॉक्यूमेंट से, डेटा से पता चल जाएगा. दैट इज योर यूनिक स्टूडेंट ID. इमेजिन यू ट्रांसफर टू सम अदर स्टूडेंट कॉलेज. फर्स्ट ईयर यू स्टडीड इन ए कॉलेज, सेकेंड प्रोफेशनल के लिए आपने शिफ्ट कर दिया, कोई दूसरा कॉलेज में माइग्रेशन कर दिया. नाउ योर ID विल स्लाइटली चेंज. सिंस यू हैव माइग्रेटेड, AYU जो था वो T बन जाएगा ट्रांसफर आइडेंटिफिकेशन के लिए, एंड वेयर यू हैव ट्रांसफर्ड उस स्टेट का बनेगा. अगर आप राजस्थान आ रहे तो RJ, एंड लास्ट नंबर थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा. सो दिस इज हाउ द नंबर ऑफ अ माइग्रेटेड स्टूडेंट लुक्स लाइक. सो दिस इज सजेस्टिंग दैट ही हैज माइग्रेटेड. सो दिस में बी जस्ट लाइक एन आधार कार्ड. आधार कार्ड जैसे आपका बन गया वैसे एक आयुर्वेद में आपका एक आइडेंटिटी बन जाएगा. सो देयर इज नो स्पेसिफिक चेंज इन योर रूटीन लाइफ. If the college doesn't send the list in time, per day NCSM can put a penalty of up to 1 lakh. तो ये तो हमारे लिए कोई इशू नहीं है, ये तो कॉलेज की बात है. So that was in relation to the student ID, Ayush student ID, unique ID. Second point in this gazette is about the NEET regulations. NEET वाला जो है,
नीट वाला जो रेगुलेशन है उसमें कुछ चेंजेस उन्होंने किया नहीं, एज इट वाज इन 2022 गैजेट वही यहाँ पर रहेगा, सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस what was there earlier in the 2022 the gazette, the same thing will be here, that is to enter the BMS. Now in relation to some of the examinations what NCSM has proposed, एग्जामिनेशन क्या क्या हो सकता है आगे हम देखने वाले, एक तो स्टूडेंट का होगा इंटर्नशिप में, एक टीचर्स का भी होगा और एक स्कॉलर का भी होगा ड्यूरिंग द एंड ऑफ देयर फाइनल पीजी. सो फॉर दोज एग्जामिनेशंस देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेल. सो एग्जामिनेशन सेल में एक कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन COE हो सकता है, होना ही चाहिए, एंड एट द सेम टाइम देयर विल बी 2 डेप्यूटी. सो आउट ऑफ 2 डेप्यूटी वन विल बी फ्रॉम आयुर्वेदा एंड अदर वन विल बी फ्रॉम ईदर यूनानी सिद्धा और सोबरिग्बा. ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, बस आपकी जानकारी के लिए. सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस एग्जामिनेशन सेल? टू कंडक्ट दिस एग्जामिनेशंस. दे आर नॉट द वंस टू सेट द क्वेश्चन पेपर, ऐसे मत सोचिए दे आर गोइंग टू प्रिपेयर क्वेश्चन. नो, उनको देखभाल करना है कि कौन सा एग्जाम होने वाला है, हु आर द एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड, and ask them questions and then prepare the related software related matter and other things. If it is online, if it is offline, then the papers. So whatever it is, conduction of exam up to results, and then the ultimate, that last part of that particular examination will be the responsibility of this examination cell. वो तो हमारे लिए इतना इंटरेस्टिंग बात तो है नहीं, क्योंकि हमारे लिए नहीं था वो. तो ये लोग क्या करने वाले, नेशनल एग्जिट टेस्ट, दिस इज कॉल्ड एज नेशनल एग्जिट टेस्ट NET. So this is for the ones who want to go for clinical practice. अगर आप पेशेंट देखना चाहते हैं तो आपको एग्जाम देना है. यू आर इन द इंटर्नशिप, इफ यू आर planning to open a clinic, or if you are wanting to join the PG, then you have to give this exam. So this is in relation to clinical practice. So why this? Maybe again the institute is not having the confidence towards the education system. The NCSM is not having that confidence whether the students are clinically potent enough to treat the patient, या उनका इंटर्नशिप ऐसे फालतू में चला गया. तो NCSM को थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो उन्होंने ये बना दिया. अब मेरा डाउट ये रहेगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन के बेसिस पे वो कैसे असिस्ट कर पाएंगे. तो मेरे लिए इतना अभी नहीं लग रहा है कि ये कैसे होगा. बट अल्टीमेटली आफ्टर 1 or 2 times of having this exam, maybe we'll get a better idea. But right now, who will take this exam? Are they potent enough to take the exams? यूजुअली होता क्या है, NCSM तो बोलता रहता है ये करेंगे वो करेंगे, आयुष मिनिस्ट्री भी बोलता रहता है, बट अल्टीमेटली जो उसको काम करने वाले हैं वो इतना पोटेंट नहीं होते. बेसिकली दे आर इम्पोर्टेंट. तो ऐसे नहीं होना चाहिए. सो दोज हु आर टेकिंग दिस एग्जाम शुड बी सच पीपल हु आर हैविंग दैट कॉन्फिडेंस और वो आर क्लिनिकली साउंड. मतलब क्लिनिकली साउंड वाले ही इस एग्जाम को लेना चाहिए. अगर खुद ही क्लिनिक नहीं चलाता, अगर वो खुद ही कोई गवर्नमेंट कॉलेज में है जहाँ पर वो OPD नहीं देखता, अगर वो लोग इस तरह के एग्जाम देंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है. सो माई डाउट इज अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट, वेदर दिस एग्जाम विल बी सक्सेस और नॉट. बट अल्टीमेटली दे हैव opened up a new system, the national exit test. Let us see how it goes. Of course it is there in other branches, आयुर्वेद में नहीं है, बट दूसरे जो कंटेम्प्रेरी साइंस वगैरह में है वहाँ भी शायद कुछ जगह लागू है, अभी कुछ जगह लागू नहीं है. इट इज़ प्रोबेबली द वेस्टर्न काइंड ऑफ थिंग. वेस्टर्न कल्चर जो है वहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखा जाता है. समवेयर दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड विद दैट. So to see whether the student is aware practically or not rather than theory. So okay, let us see 1 or 2 years. So compulsory for those who want to have clinical practice. And if you don't want to go for clinical practice, so then now you may get a question, अगर clinical practice ही नहीं करना है तो ये कोर्स ही क्यों करना था? तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपके मन में. सो ऐसे तो बहुत लोग हैं जो ऐसे ही ज्वाइन कर लेते, तो बाद में शादी कर देते हैं, फिर उसके बाद वो प्रैक्टिस नहीं करते. सम पीपल कम फॉर मेडिकल साइंस जस्ट टू गेट द डिग्री सो दैट दे कैन गेट अ गुड ब्राइड और ब्राइड्स ग्रूम. तो ये भी चलता है, तो उनके लिए ज़रूरत नहीं है. सो दे डोंट हैव टू गिव दिस काइंड ऑफ टेस्ट. And some people may go into already developed business. They may have some family business related to some raw drugs, herbal preparations, etc., etc. So maybe for that purpose they may not give. Until unless you want to go for clinical practice, आपको ये वाला एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज यू हैव टू गिव. तो एवरी ईयर जो है 2 बार होगा एग्जाम, फरवरी में होगा और एक अगस्त में होगा. सो ओनली आफ्टर दिस यू कैन रजिस्टर इन ए बोर्ड, स्टेट और सेंट्रल बोर्ड. दिस इज इम्पॉर्टेंट.
अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन, डिग्री सर्टिफिकेट और इंटर्नशिप सर्टिफिकेट के साथ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता, लेकिन अभी ऐसे नहीं होगा. विद दीज टू सर्टिफिकेट यू ऑल्सो शुड हैव अनदर वन कॉल्ड एज नेशनल एग्जिट टेस्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट. उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा. सो हियर दे हैव मेड इट स्ट्रिक्ट. तो यहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक्ट कर रखे हैं. सो देर इज़ नो ऑप्शन, यू हैव टू क्लियर. मुझे लगता है 99% लोग जो है ऐसे एग्जाम तो देंगे, बाद में प्रैक्टिस करेंगे नहीं करेंगे वो तो अलग बात है, बट आई थिंक मेजोरिटी विल गिव बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर. देन ऑल्सो दे हैव टू टेक दिस एग्जाम. तो इसमें आपको 50% मार्क्स लेके आना है, वो तो हर एक में वही रहेगा. तो मेन एम इज़ टू चेक दी स्टूडेंट्स क्लिनिकल हैंड. थियरी तो उन्होंने देख चुके ऑलरेडी, 3.5 साल 4.5 साल में एग्जाम हुआ है. सो नाउ दे वांट टू सी देयर क्लिनिकल एस्पेक्ट. सो दैट इज इन रिलेशन टू द एम. सो आपने 1-2 बार क्लियर नहीं कर पाए क्या आप बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे? ऐसे कुछ नहीं है. आप ज़िंदगी भर इसका एग्ज़ाम देते रहेंगे, मतलब दे सकते, कोई इश्यू नहीं है. 4 बार दे दो, 5 बार दे दो, 6 बार दे दो, अल्टीमेटली एक दिन आप क्लियर कर ही देंगे, तो उसके बाद आपका प्रैक्टिस हो सकता है. तो इसमें कोई लिमिट इन्होंने नहीं रखा है. लेकिन एक चीज़ है कि इसमें शायद वो पैसे तो रखेंगे, एग्ज़ाम के लिए पैसे तो रखेंगे, उससे भी कुछ कमाई हो जाएगा. तो जितना लोग फेल होते रहेंगे उतने अगले बार जो है पैसे मिलता रहेगा. सो दिस कुड बी अनदर हिडन एजेंडा. नाउ नेक्स्ट इज इन रिलेशन टू the eligibility. So who are eligible? So eligibility is like you are in the internship, and internship आपको पता है it is of 365 days. If you have completed minimum 275 days of internship, you are able to give the take the exam. Means मैंने कहा फरवरी में इसका एग्जाम होगा एंड अगस्त. इफ फरवरी के एग्जाम के टाइम अगर आप देना चाहते हैं तो उस टाइम का जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेशन, तब तक आपका 275 डेज इंटर्नशिप खत्म हो जाना चाहिए. इफ 275 डेज आर नॉट ओवर, देन यू कैन नॉट गिव एट दैट टाइम, देन यू हैव टू गिव इन दी अगस्त. अगस्त तक आपको वेट करना पड़ेगा. सो दैट इज वन रूल. इफ यू ऑलरेडी कंप्लीटेड इंटर्नशिप, उसके बाद कभी भी दे दो, जब भी आएगा एग्जाम उसके बाद कभी भी दे दो, फरवरी में या अगस्त में. सो दैट इज द रूल. So foreign nationals also some point is written, but I couldn't understand because very few are there and they have their own country rules and other things. So उनके लिए समझ में आ गया होगा. So they have been, they also have to give who have been recognized under section 36 of the act. तो ये मेजोरिटी के लिए नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ. नेक्स्ट, there is a technical committee for the net that is who are going to conduct this examination. So they will be preparing the syllabus, they will be developing the blueprint of the question papers. Committee shall identify experts. यहाँ मैं कह रहा था, जो एक्सपर्ट है वो सच में एक्सपर्ट होना चाहिए. फालतू में किसी को बना दिया ऐसे नहीं होना चाहिए. एक्सपर्ट में शुड बी एक्सपर्ट. आयुर्वेद में कई लोग हैं कहने के लिए एक्सपर्ट है, लेकिन वो बेसिकली एक्सपर्ट नहीं है. जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिग्री या प्रोफेसर है इसलिए दिया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो एक्सपर्ट मतलब एक्सपर्ट को ही देना चाहिए. एंड दे आर गोइंग टू कंडक्ट एन इंपॉर्टेंट एग्जाम. सो आई थिंक हियर पीपल शुड बी वेरी केयरफुल whom they should consider as experts. ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इफ़ द एक्सपर्ट इज़ नॉट अप टू द मार्क, फिर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी थोड़ा ऐसे रहेगा. तो उसके बाद जो है आप देखिए, कमिटी जो है एक एजेंसी को देगा, तो एजेंसी विल प्रिपेयर ऑल दोज टेक्निकल एस्पेक्ट्स. ठीक है, ये तो उनके लिए. सो देन इट्स अबाउट द पीजी एंट्रेंस एग्जाम. सो दैट इज अप्रैल ऑफ एवरी ईयर. नाउ दे हैव अनाउंस्ड एवरी ईयर इट विल बी ड्यूरिंग अप्रैल. अगर कोई चेंज है तो वो बता देंगे, अदरवाइज टेंटेटिव मंथ इज अप्रैल. So with during the internship itself, students will be giving. Maybe they are about to end their internship. At that time, they will be giving their exam. ये applicable है अगर course regular हो जाता है. So right now the course is slightly delayed because of COVID and other things. ये अभी के लिए नहीं है. अभी जो students final year में हैं उनके लिए नहीं है, इसलिए लिखा है कि अगर change है तो बता देंगे. तो एग्जाम हो सकता है, लेकिन एलिजिबिलिटी का मैटर जो है थोड़ा बहुत अलग कर सकते हैं. अदरवाइज व्हेन द कोर्स बिकम्स रेगुलर, देन दे आर टेलिंग कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप शुड बी एंड ऑफ अप्रैल. तो अगर आपका अभी कोर्स चल रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. यू आर नॉट इन दैट प्रॉपर टाइम पीरियड. सो इफ योर यूनिवर्सिटी इज नॉट कंडक्टिंग द एग्जाम इन राइट टाइम, देन योर इंटर्नशिप कैन नॉट कंप्लीट बाई 30th अप्रैल. सो आप क्या कर सकते हैं, वन थिंग यू कैन डू इज यू कैन राइट टू बोथ द यूनिवर्सिटी एज वेल एज NCISM रिगार्डिंग योर करेंट स्टेटस. आपके कॉलेज के जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप सब लिख दो फाइनल ईयर वाले कि यूनिवर्सिटी में कि ऐसे एक गैजेट आ चुका है एंड दे आर टेलिंग अस टू कंप्लीट इंटर्नशिप बाय 30th अप्रैल. बट as per this schedule of our final year,
our exams are scheduled to be held in this month and maybe our internship may start this month. So इसलिए हमें इस बार के लिए इसका एक रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। हालांकि रिलैक्सेशन तो मिलेगा ही, बट still you can apply because last year some of the 2017 batch students missed out on AIA PGT. So not due to their mistake, due to the mistakes of the university and maybe the college. So that should not happen. इसलिए आप एक बार रिमाइंडर तो डाल दीजिए, सभी स्टूडेंट्स डालेंगे तो लोगों के नज़र में भी रहेगा. So that is the advantage of that. So there will be any change means the institute or the NCSM will definitely announce that. तो बाकी जो रूल्स हैं AAPGT के लिए वो वैसे रहेगा जो पहले था. नेक्स्ट इज फॉर टीचर्स. इसमें तो दोनों स्टूडेंट्स हो गए यूजी पीजी, अब तो टीचर्स भी हैं तो उनको भी नहीं छोड़ा इन्होंने. सो टीचर्स के लिए भी एक एग्जाम है. तो टीचर्स के ऊपर भी शक है कि ये एमडी के बाद वो जानते ही नहीं जानते. ठीक है, एमडी के बाद तो कुछ लोग टीचिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं करना चाहते. सम आर एलिजिबल मेंटली, सम आर नॉट एलिजिबल मेंटली, सम वांट टू, सम आर फोर्सिबली ज्वाइनिंग. सो ठीक है, एग्जाम तो ठीक है, आई डोंट हैव एनी इशू विद दिस. सो हियर इट इज सेइंग पीजी स्कॉलर्स हु आर एंटरिंग द टीचिंग प्रोफेशन. तो उसमें क्या था, NET, there it was about the internees going for clinical practice. Now it is about the PG scholars going to enter teaching profession. अगर टीचिंग प्रोफेशन में जाना है आप दे दो, नहीं जाने तो मत दो, कोई बात नहीं. सो नो इश्यूज. सो ओनली इफ यू आर टीचिंग फैकल्टी like want to be, then you can give. So even at the end of PG, like final year, you can give this when you complete 2.5 years, 30 months. लास्ट 6 महीने बचे हैं तभी आप दे सकते हैं. द यूजुअल एग्जाम टाइम इज मे. एवरी ईयर 1 मंथ, दैट इज मे, देयर विल बी ए नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट. सो दैट टाइम यू कैन गिव. अभी जिसके पास ऑलरेडी टीचर कोड है उनके लिए अभी नहीं होगा. इफ यू ऑलरेडी हैव ए टीचर कोड राइट नाउ, यू डोंट हैव, बट द बैच विच आर गोइंग टू फेस द एग्जाम विद इन 2 मंथ्स, दे हैव टू गिव दिस एग्जाम. उनके लिए ये है. तो आप वो जो स्कॉलर्स हैं उनको लिए देना पड़ेगा. बट दोज आर ऑलरेडी हैविंग टीचर कोड, when they are going to get promoted, मान लीजिए आपने 2 साल पहले ज्वाइन कर लिया, so now you have 2 years experience, you already have teacher code, you are already a teacher in the college. After 3 years your college is going to make you associate professor, so that time you have to give another test. So after 5 years you are going to become professor, that time again you have to give. So it is about the first time recruitment assistant professor के लिए तब भी देना है, and also when you are getting promoted after 5 years for associate and after 10 years for the professor, that time also you have to. Means promotion will be again based on this test. I think वो तो आपको समझ में आ गया होगा. तो प्रमोशन अपने आप तो टाइम के साथ होता ही है, बट दिस टाइम दिस रूल मेक्स इट बिट मोर स्ट्रिक्ट. आपको 5 साल के बाद असिस्ट कर रहे हैं, आप एसोसिएट के लिए लायक है नहीं है. So again, it's going to be the first time. So we'll see how the question paper will come and how they are going to assist and all that. Only after that we can comment. तो अभी के लिए तो इन्होंने बना दिया, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आएगा. इज इट रियली वर्थ और नॉट. सो दैट इज इन रिलेशन टू टीचिंग जॉब. सो इफ यू आर वर्किंग एज ए मेडिकल ऑफिसर इन अदर ब्रांचेस एंड इफ यू वांट टू कम बैक फॉर टीचिंग फील्ड, तब भी आपको ये एग्जाम देकर ही आना है. ऐसा नहीं है कि आप उस टाइम चले गए अभी डायरेक्टली आ जाओ, नहीं, आपका कोई एक्सपीरियंस माना नहीं जाएगा. यू हैव टू गिव एग्जाम. वंस यू क्लियर दैट यू कम इनटू द टीचिंग प्रोफेशन. सो एक्सपीरियंस जो है और एज क्राइटेरिया, ये सब जो है पिछले जो गजट था वही है. सो ब्रीफली 5 ईयर्स के बाद एसोसिएट, 10 ईयर्स के बाद प्रोफेसर. सो दिस इन रिलेशन टू द टीचिंग एग्जामिनेशन. वंस यू टेक द एग्जाम यू आर हैविंग दैट वैलिडिटी फॉर 10 ईयर्स. सो 10 ईयर्स तक आपको वैलिड है. सो अगर 10 ईयर्स से ज़्यादा हो गया तो दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा. सो 10 ईयर्स इज सफिशिएंट बिकॉज फ्रॉम असिस्टेंट टू एसोसिएट यू नीड ओनली 5 ईयर्स. सो 10 ईयर्स इज सफिशिएंट. बीच में आपने छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, विद इन 10 ईयर्स कंप्लीट योर दैट पर्टिकुलर पोस्ट. सो इस तरह से दिया हुआ है. एंड देन द रीज़न फॉर दैट दे हैव रिटन सो मेनी थिंग्स. इसमें शब्दों में नहीं जाना है क्योंकि कई बार शब्दों के तरह से वो काम नहीं होता है. तो ऐसे तो शब्दों में तो काफ़ी चीज़ें दिया हुआ है, कोई बात नहीं. वो ये देखने वाला है कि टीचिंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बस इतना ही बात है. सो देर इज़ नो कंपल्सन ऑफ PhD. सो अर्लियर देर वेर सो मेनी रूमर्स, PhD कंपलसरी हो जाएगा, ये हो जाएगा. ऐसे कुछ नहीं है. PhD अभी भी कंपलसरी नहीं है, इस गैजेट के अनुसार भी कंपलसरी नहीं है. सो इफ़ यू हैव नॉट डन PhD एंड इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग हार्ड टू गेट इनटू दिस फील्ड, सो आपके लिए अभी रिलैक्सेशन है, कोई दिक्कत नहीं, इतना जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है. द रिसेंट गैजेट्स आर सजेस्टिंग दैट प्रोबेबली PhD विल नॉट बी मेड हाईली कंपलसरी. ऐसे तो कुछ दिख नहीं रहा. सो दोनों गैजेट में PhD के बारे में एसेंशियल में नहीं है,
डिजायरेबल में यस, इफ यू वांट लिटिल लिटिल मोर काइंड ऑफ यू कैन से प्रेफरेंस, वहाँ तो चाहिए, बट एसेंशियल के लिए ज़रूरत नहीं है। देन द परसेंटेज अगेन 50% आपको लेके आना है, सो दैट इज इन रिलेशन टू टीचर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। एंड लास्टली देर इज अ यूनिक कॉन्सेप्ट प्री आयुर्वेदा, इट इज कॉल्ड एज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट प्री आयुर्वेदा, सो NEET। सो यहाँ पर जो है इन्होंने 7.5 ईयर्स का एक प्लान बनाया है, यू कैन सी हियर, दैट इज द 2 years ऑफ प्री आयुर्वेदा। सो आफ्टर 10th जो है आपका +1 +2 होगा, इसको ये प्री आयुर्वेदा मान रहा है, मीन्स 2 years। नेक्स्ट 4.5 years विल बी एज यूजुअल, +1 year ऑफ इंटर्नशिप विल बी एज यूजुअल। तो कुल मिलाकर 10th के बाद तो 7.5 साल ही हो रहा है। सो आई थिंक here the clarity is not given whether the student can skip +1 +2 is not mentioned, इसलिए students are confused and people are confused it is applicable for whom, because 7.5 years is too much. So after reading this, because very less information is given, what I understand is 10th के बाद अगर आपको फिक्स है कि आयुर्वेद में ही जाना है या आयुष फील्ड में जाना है, उसमें भी आयुर्वेद में जाना है, सो यू कैन टेक द प्री आयुर्वेदा सिंगल टेस्ट, एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। सो इफ यू आर गेटिंग सेलेक्टेड देयर, वो MCQ बेसिस पे होगा, मई और जून में एवरी ईयर। सो MCQ बेसिस, इट कुड बी ऑनलाइन और ऑफलाइन, ब्रोशर एंड ऑल विल बी डेवलप्ड एंड विल बी शेयर्ड, एंड उस टाइम पता चलेगा कि एग्जाम का बेसिस क्या है, उसका पैटर्न कैसे होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ वो ब्रोशर के बाद ही आएगा। सो राइट नाउ दे हैव नॉट गिवन एनी standard kind of protocol, so 50% they have to get the students। so here the guidelines will be issued from commission time to time। तो यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट के अनुसार ही होगा। यहाँ पर आप एक बार एक चीज़ याद रखिए, जो रैंकिंग है मेरिट लिस्ट, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर दैट ईयर, मीन्स वन टाइम द स्टूडेंट गिव्स द एग्जाम, नॉट वैलिड फॉर नेक्स्ट ईयर अगेन ही हैज़ टू गिव एग्जाम इफ ही वांट्स टू कम बैक टू दिस, अदरवाइज उसी साल उनको ले जाना चाहिए सीट। सो डिटेल इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है यही है। +10 आई मीन द 10th के बाद the student can enter +1 +2, of course it is available all over India, it can be state or central board or it can be ICSE as well, so various options are there, it could be art, science or commerce। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, if you are sure of entering into this field of Ayurveda, then instead of +1 +2 subjects, probably the student will be given pre-Ayurveda related course, that is he or she will be made ready to read the topics of Ayurveda, probably that is their opinion। तो वहाँ पर 2 साल हो जाएगा, फिर 4.5 साल एज यूजुअल BMS +1 year इंटर्नशिप। So basically instead of +1 +2, these people are going to study pre-Ayurveda related course, maybe the backgrounds to study Ayurveda। तो as of now ऐसे लग रहा है, I'm not telling it as the final one, so since there is no definite detailed information, कुछ गेस करना पड़ रहा है, अदरवाइज 7.5 साल तो कोई करेगा नहीं BMS, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, एंड नीट इज ऑलवेज देयर, सो नीट तो रहेगा ही, तो +1 +2 के बाद नीट रहेगा। सो दिस इज एन एडिशनल वन व्हाट आई फील। सो लेट अस सी द फर्स्ट टाइम व्हेन दिस अनाउंसमेंट गेट्स आउट, दैट टाइम वी हैव टू एनालाइज देम एंड सी देम इन डिटेल। लेकिन ये किसी स्टूडेंट के लिए नहीं है जो अभी ऑलरेडी BMS में आ चुके हैं, सो दिस इज नॉट फॉर देम, this is for the future Ayurveda students who want to enter Ayurveda, maybe after 10th they have an opportunity। तो अभी जो भी है उनके लिए ये है ही नहीं। तो इस तरह से आपने ये जो गैजेट वाला टॉपिक था देखे होंगे। सो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द मेंशन टॉपिक्स, यू कैन definitely comment in the section, so definitely you'll get the answer there। most of the sentences this time is simple, गैजेट जो पहले था वो थोड़ा लंबा चौड़ा था और उसमें टेबल्स बहुत थे, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही कम शब्दों में प्रिसाइजली दिया हुआ है, इसलिए मुझे नहीं लगता आप एक बार पढ़ेंगे तो कोई कन्फ्यूजन रहेगा। मे बी लास्ट वाला पार्ट तो रहेगा, उसके ऊपर पूछेंगे तो मुझे भी अभी क्लियरली बताना मुश्किल है, बट बाकी चीज़ जो है 4 पॉइंट है उसमें आपको ज़रूर कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन काइंडली पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। सो आई थिंक दिस गैजेट विल हैव सम चेंज, विल मेक सम चेंज इन द सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा। सो दिस इज स्पेसिफिकली द प्रैक्टिस पार्ट। सो इसमें देखेंगे तो सारे प्रैक्टिस रिलेटेड है। एक तो टाइम पीरियड फिक्स करने के लिए, that is to fix the time period of certain examinations and other things, maybe to make it systematic, a good move, and some are related to practical aspect। now the intention is good, now we have to see the execution part, always intentions will be good but execution जो है
कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाता है या कोई प्रेशर में आ जाते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर में आ जाते हैं या कोई दूसरे फ्रेंड सीनियर की बातों पे आ जाते हैं, तो एनसीएसएम शुड टेक केयर दैट व्हाटएवर दे आर टेलिंग शुड बी डिलीवर्ड। तो ये तो जो एनसीएसएम वाले सुन रहे हैं वीडियो उनके लिए भी है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सुनते रहेंगे ऐसे ही, वो भी तो जासूसी करते रहते हैं। तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट की तरफ से या जो भी आयुर्वेद की भलाई चाहते हैं उनके लिए उनकी तरफ से है कि आपके जो इंटेंशन है सही है, बट आपका एग्जीक्यूशन सही होना चाहिए, तभी जाके इसका फ़ायदा होगा। I hope all the viewers have understood what I wanted to convey through this video. So until next time, thank you.